So as you know, from 12th of January, CA Foundation exams are going to start. So approximately 2 months are left for preparation. And those who are going to give this Jan attempt, maybe you guys are feeling like, days are passing too fast. Like पता ही नहीं चलता कब दिन शुरू होता है, कब खत्म हो जाता है. Or maybe you guys don't have any mood to study right now. Or procrastination is there, distractions, and a lot of things. So if you are feeling these things, so first of all make yourself understand like अभी नहीं पढ़ा ना तो फिर marksheet में unsuccessful लिखा आएगा, and then you have to give the next attempt, that is the June attempt. So it's better कि अभी पढ़ लेते हैं. If you really plan your day and you're not able to work according to it, so I would say please be strict with yourself and try to complete whatever you have planned to do that day. So if you are someone whose syllabus hasn't completed yet, so I would suggest you, so please complete your syllabus till first week of December. At least 80% of your syllabus should be covered. Because after the first week of December, you should start revising. Now let's talk about those who have completed their syllabus या फिर जिनका syllabus अभी कुछ ही दिनों में complete हो जाएगा. So here's the subject-wise strategy for them. So for paper number 1, that is accounts, whenever you are revising any topic or point which you think is important or you think you will easily forget, so what you should do, like just write that point on the back side of your notebook in your regional language. Like I used to write it in Hindi, and to be honest, it would be very helpful in your next revisions. Also, before the exam day, you can revise those points rapidly. And if you want to do revision from marathon, so you can watch Nitin sir's marathon, that is from PW. Those marathons are really helpful, so you can watch out them. Revision, there's no need to do the whole ICI material. You need to do the questions which you marked as important. And after the revisions, you should give mock test or just solve PYQs and all. Let's come to the paper number 2, that is law. And as you know, law is a theoretical subject, so you have to revise it again and again. Focus to learn keywords, and जो provisions आपसे easily learn हो पा रहे हैं तो उन्हें भी learn करना. Like ऐसे ना आप acronyms बना सकते हो, जैसे कि coercion section 15 है, undue influence section 16 है, fraud section 17 है और misrepresentation section 18 है. तो इसे मैंने ऐसे लर्न किया था जैसे कि CUFM. तो मैंने एक एक्रोनिम बना लिया इसका. CU दैट इज मिलेंगे, FM जो कि एक इंटर में एक सब्जेक्ट है. सो ऐसा एक एक्रोनिम बन गया CUFM. तो एक्चुअली इसे ना इजीली लर्न हो जाता है. अब बात रही जैसे कि सेक्शन 15, तो उसे कैसे लर्न करेंगे. जैसे कि 15 से जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हुआ था, तो 15 उस डेट को ऐसे याद कर लिया, तो सेक्शन 15 ऐसे लर्न कर लिया. ऐसे आप लोग ना एक्रोनिम्स बना सकते हो और क्रिएटिव आइडियाज़ से ऐसे लर्न कर सकते हो प्रोविजंस को. बट ऐसा बहुत सारे भी मत बना लेना, कहीं वो सब कुछ मिक्सड अप हो जाए, पता चले एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ याद नहीं आए. सो अगर देखो कि एक्रोनिम्स बनाओगे तो बाद में उन्हें लर्न भी तो करना पड़ेगा ना, तो इतने ही बनाना जितने लर्न हो पाए, ठीक है. तो इफ़ आई टॉक अबाउट कि मैंने मेरे टाइम पे, क्योंकि मैंने इतने प्रोविजंस याद नहीं किए थे टू बी ऑनेस्ट. और अगर मैं लॉ एग्ज़ाम की बात करूँ तो एक्चुअली मैंने तो एक भी प्रोविज़न नहीं लिखा था, क्योंकि जो मैं लर्न करके गई थी उसमें से एक भी नहीं आया था. सितंबर अटैम्प्ट में जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उसमें से भी क्वेश्चंस आए थे, तो प्लीज़ अच्छे से समझना कॉन्सेप्ट को. इन लॉ यू शुड डू राइटिंग प्रैक्टिस डेली. डेली मतलब डेली करनी ही है, क्योंकि बाद में कर लेंगे तो वो बाद में कभी आता ही नहीं है. सो यू शुड मस्ट डू दैट. Also, you should do PYQs, MTPs and RTPs questions. एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट तो आप लोगों को देने ही देने हैं. और यू कैन ऑल्सो वॉच ABC एनालिसिस, जो कि IG सर ने अपलोड कर रखा है, आई मीन इंद्रेश गांधी सर के YouTube चैनल पे. तो ABC एनालिसिस में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेपर नंबर 3, दैट इज़ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड. तो अगर आपने कुछ चैप्टर्स छोड़ रखे हैं कि नहीं कौन करेगा, बाद में कर लेंगे या फिर रहने देते हैं, तो मैं बोलूँगी इनकी ना OTM सीरीज़ देख लेना, जो कि प्रणव पोपट सर ने अपलोड कर रखी है, क्योंकि कुछ नहीं करने से बेहतर है कि कुछ करके जाओ. ऑल्सो आप आकाश अग्रवाल सर ने सेंचुरी वीडियोज़, ऐसे मैथ्स की सेंचुरी, स्टैट की सेंचुरी, इस नाम में वीडियो अपलोड कर रखे, तो आप वो देख सकते हो. मैथ्स में बोलूँगी मॉक टेस्ट देना टाइम लिमिट के साथ, रियली इंपॉर्टेंट. लाइक 2 से 3 मॉक टेस्ट तो दे के ही जाना. वैसे भी 2 घंटे का ही होता है मैथ्स का पेपर, तो इतना टाइम तो निकाल सकते हो. और मैथ्स में और मैं क्या बोलूँगी कि एक ना फॉर्मूला शीट प्रिपेयर कर लेना.
मैंने अपने टाइम पे मैथ्स में एक फॉर्मूला शीट प्रिपेयर की थी जो कि एग्ज़ाम डे से पहले ना बहुत हेल्पफुल रहती पूरा रिवाइज करने को। उसमें सारे फॉर्मूलाज होते हैं, तो बस वो 2-3 पेजेस की वो जो फॉर्मूला शीट होती है वो लाइक इतनी सही रहती है ना एग्ज़ाम टाइम पे, आप इजीली सब कुछ फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। लास्ट पेपर, दैट इज़ पेपर नंबर 4, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके लिए आई वुड से अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो यू कैन प्रिपेयर समरी नोट, जिसमें 1 या फिर 2 पेज में आपको पूरा चैप्टर समराइज करके लिखना है। इससे पहले ना इतना वास्ट सिलेबस को रिवाइज करना इजी नहीं है कि 10 के 10 चैप्टर आप एक दिन रिवाइज करने, पूरा आई से मटेरियल खोल खोल के पढ़ोगे एक एक लाइन। तो वो जो समरी नोट्स होते हैं ना 1 से 2 पेज में, फटाफट आप लोग उससे रिवाइज कर सकते हो। रिविजन के लिए आप एमवी सर के वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। कॉन्सेप्ट को ना अच्छे से समझना हो कि जो इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है ना, वैसे तो सही बताओ तो ईजी आता है, अगर कॉन्सेप्ट पता है ना तो बहुत ईजी है। ऑल्सो 2 से 3 मॉक टेस्ट देना। And at last, I think I'm sure that there would be a comment like, I haven't studied anything so far, so can I pass the exam by studying for 2 months? Or those people who have completed only 20 to 30% of of the syllabus till now. So what I would say for those guys is, just start practicing or learning those concepts which carry higher weightage of marks. Also, be productive, be determined towards your goal. So that's it for this video, guys. Still, if you have any doubt, you can comment it down. I will try my best to answer all your questions. So yeah, let's meet in the next video. Till then, bye.